warmly and respectfully welcome the chief guest, Shri Shahid Mansoor, Honorable State Minister of Labour and Employment, the Government of Uttar Pradesh, Shri Ritu Punia, Shri Navdeep Renma, District Magistrate, Meerut, Miss Ritu Punia, ADM, Meerut, Mr. P.K. Mishra, ADIOS, Engineer R.D. Gupta, AE PWD, Engineer D.P. Singh, AE PWD, Mr. Suraj Bhan from Education Department. We would like to thank all our honorable chief guests for their valuable presence despite of their busy schedule. The free laptop distribution scheme of the government in Uttar Pradesh is aimed at providing equal opportunities to students who passed out of class 12 in 2012 and are aiming to study further, since many of them were lagging behind due to lack of resources. But now the students can get to learn about the new technologies and shape their career using these laptops. The state government took this ambitious project to benefit all sections of the society. It was a much awaited moment for the beneficiaries as they had been waiting for long. Computer has emerged as a necessity. Invention of the wheel brought a revolutionary change in the world. And second came when the computer was invented and internet came in the countries which adopted it progressed rapidly. Innovation is crucial in society as new techniques in social research are being constantly introduced. Speed is essential for meeting the challenges of competition in today's digital era. Hence, the government is distributing these laptops with the sole intention that the recipients can use the machine for educational purposes and excel in whatever field they choose. Now I request Vice Chairman BKP, Mr. Pradeep Jain, to present a sapling to our Honorable Chief Guest, Shri Shahid Mansoor, as a small token of our appreciation. Now I request Executive Director, Vidya Knowledge Park, Mr. Saurabh Jain, to present a sapling to our Honorable Chief Guest, Shri Navdeep Renma, as a token of love and respect. Now I request Dean Sir, Mr. Rohit Khokar, to present a sapling to our Honorable Chief Guest, Ms. Ritu Punia, SDM, Meerut. Now I request all the dignitaries to come forward for lighting of the holy lamp to grace the event with the blessings of the Almighty. I request all the respectful dignitaries to come forward and take their seats on the dais. I request the entire gathering to stand in attention in respect of our Vidya anthem.
बुद्ध ज्योति जलाए, ज्ञान सुधा बरसाए, ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए। और प्रशिक्षण का ये मंदिर अजर अमर हो, शिक्षण और प्रशिक्षण का ये मंदिर अजर अमर हो। विद्या अर्जन करते हैं जो उनकी सुगम डगर हो, विद्या अर्जन करते हैं जो उनकी सुगम डगर हो। दीप जले राहों में उनकी मन प्रमुदित हो जाए, ज्ञान सुधा बरसाए, ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए। वाचा और कर्मणा में हो ऐसी समता, मनसा वाचा और कर्मणा में हो ऐसी समता। सत्य सफलता की हो कुंजी, सब में हो वह क्षमता, सत्य सफलता की हो कुंजी, सब में हो वह क्षमता। सत्यम शिवम सुंदरम की चहुदिशि वर्षा हो जाए, ज्ञान सुधा बरसाए, ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए। ज्ञान और विज्ञान की हर पल अद्भुत ज्योति जलाए, ज्ञान सुधा बरसाए, ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए, विद्या का परिसर मंगल में ज्ञान सुधा बरसाए, ज्ञान सुधा बरसाए, ज्ञान सुधा बरसाए। Shri Shahid Mansoor, our Honorable State Minister, is a high principled Indian politician who has influence in Uttar Pradesh state of India. He first became a MLA of Samajwadi Party from the Kittur 46th District Meerut in 2003. He has been the Education Minister of Uttar Pradesh and once the Finance Minister of Uttar Pradesh in 2003. He had also won the Assembly election for Samajwadi Party in 2002, 2007 and 2012. Now I request Executive Director Vidya Knowledge Park Mr. Saurabh Jain to facilitate Shri Shahid Mansoor. Shri Navdeep Rinva, District Magistrate Meerut, an eminent and a notable personality who is full of zeal to work for the interest of the city with a creative and a productive approach. He completed his B.Tech in Computer Science with the first division and was an IAS of batch 1999. He took active participation in handling the communal riots that took place a month ago in and around Meerut city just because of his control and ethical measures. Now, I request Mr. Rohit Khokar, Dean Student Affairs,
Vidya College of Engineering to facilitate Sri Navdeep Renwa. Miss Ritu Punia, a dynamic lady with aesthetic qualities and values from Bagpat, had been the first amongst girls in 407 successful candidates in Uttar Pradesh Public Service Commission Examination 2010, where she had got the post of Deputy Collector. She did her schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sardana, Meerut, with graduation and post-graduation from Jat College, Balod. Now, I request Vice Chairman Sir Mr. Pradeep Jain to facilitate Ms. Ritu Punia. I request Dr. Rajendra Kumar, HOD CS Department, to facilitate Mr. P.K. Mishra, ADIOS. Now I request Mr. Saurabh Sharma, Associate Dean, Vidya College of Engineering, to facilitate Mr. Suraj Bhan from Education Department. Now I request Mr. Ramveer Singh, Dean Academics, Vidya College of Engineering, to facilitate Mr. D.P. Singh, AE, PWD. Now I request Mr. Raman Chadda, HOD IT Department, Vidya College of Engineering, to facilitate Mr. R.D. Gupta, AE, PWD. Now, I would like to request our Director, VCE, Dr. N.K. Sharma, to enlighten the young minds with his inspirational words of wisdom. आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री शाहिद मंजूर जी, मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी मेरठ श्री लंबी जी, वाइस चेयरमैन श्री प्रदीप जैन सर, कार्यकारी निदेशक श्री सौरभ जैन सर, SDM श्री ऋतु पुनिया जी, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न संकायों के निदेशक, विभागाध्यक्ष, मीडिया प्रतिनिधि एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आज लैपटॉप वितरण समारोह के अवसर पर तहे दिल से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी कार्यक्रम से समय निकालकर यहां पर आके हमें अनुग्रहित किया है। मैं डीएम मेरठ व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर यहाँ की शोभा बढ़ाई है। आज का युग ICT का युग है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज अधिकतर चीज़ें ई रूप में मिल रही हैं, चाहे आप किसी सामान को खरीदने चाहते हो वो भी ई रूप में आपको मिल सकता है, आपको पढ़ना है तो उसकी भी ई बुक्स आपको पास अवेलेबल है। हर चीज़ लगभग आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें टैबलेट, स्मार्टफोन्स या लैपटॉप की आवश्यकता होगी, लेकिन हर एक व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत निःशुल्क लैपटॉप का वितरण उन सभी योग्य छात्र छात्राओं के लिए किया है जो उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो लैपटॉप आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है उसका अधिकतम उपयोग आप शिक्षा अर्जन के लिए करेंगे, न कि मनोरंजन के लिए। मैं पुनः सभी गणमान्य व्यक्तियों का विद्या नॉलेज पार्क के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom. Now I request Honorable State Minister Shri Shahid Mansoor to enlighten us with his motivational thoughts. On behalf of all the students, मैं PM मेरठ श्री लम्बी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मुख्यमंत्री का जो संदेश है उसको यहाँ आकर पढ़ें। पीछे पड़ गए सारे कुछ प्यारे बच्चों, ये जो लैपटॉप आज आपको मिलने जा रहे हैं, इनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्यों ये लैपटॉप वितरण की योजना प्रारंभ की गई और किस उद्देश्य के साथ आपको ये लैपटॉप दिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं लैपटॉप पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गरीब व किसान परिवारों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध कराकर समाजवादी सरकार इन नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में साधन संपन्न युवाओं के बराबर खड़ा होने का अवसर उपलब्ध करा रही है। सरकार ये भी मानती है कि नौजवान देश की दौलत हैं और देश का भविष्य उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। लैपटॉप से प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के छात्र छात्राओं को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उन्हें तकनीक के माध्यम से दुनिया में हो रही प्रगति व विश्व के रहस्यों को जानने समझने में आसानी होगी। कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए सपने देखना ज़रूरी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यदि साधन भी उपलब्ध हों तो नौजवानों के भविष्य के साथ साथ विश्व को बदला जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पास सपने भी हैं और असीम क्षमता भी है और लैपटॉप के रूप में साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य उज्जवल बनेगा, संवरेगा तथा विकास और सफलता के नए अध्याय लिखे जाएंगे। एक नए उत्साही और नौजवान भारत की ये पुकार है कि हम सभी ज्ञान और तकनीक की नई उपलब्धियों और विधियों से लैस हों। लैपटॉप वह तोहफा है जो नौजवानों के सपनों को नए पंख देगा और उनके परिवार के माहौल में भी परिवर्तन लाएगा। राज्य सरकार का यह मत है कि लैपटॉप वितरण से समाज के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के बीच ज्ञान एवं तकनीक के मामले में व्याप्त असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का काम किया है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया से जुड़ने के लिए राज्य सरकार ने युवाओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरित करने का निर्णय सोच समझ कर लिया है, जिससे ये नौजवान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपना विकास कर सकें। फिर इंटरनेट की सुविधा के बाद पूरा विश्व छोटा परिवार प्रतीत होने लगा। इस तकनीकी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप शिक्षा सहित तमाम क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव आया है। विकास के आधुनिक युग में छात्र छात्राओं को लैपटॉप के माध्यम से तकनीकी ज्ञान व सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। लैपटॉप में हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में भी कार्य करने की सुविधा दी गई है। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लैपटॉप का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में सार्थक बदलाव लाएंगे, परिवार और दूसरों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने में सहायक बनेंगे। अखिलेश यादव। छात्रों, आप सबको आज मिलने वाले लैपटॉप मुबारक हों और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट किया है और प्रोफेशन जिसमें भी आप जाएंगे, आप सफलता के नए कीर्तिमान लिखें और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लैपटॉप आपको
आज मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उसका भरपूर सदुपयोग आप लोग करेंगे और अपने कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ जो कंप्यूटर की जानकारी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की जानकारी है, प्रोग्रामिंग की जानकारी है, इसमें भी आप अपने आप को प्रवीण करेंगे और अपने माता पिता, अपने इंस्टीट्यूट और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. On behalf of all the students, we are deeply appreciative and offer our Chief Minister the most grateful thanks. Now I request Honorable State Minister Shri Shahid Mansoor to enlighten us with his motivational thoughts. मेरठ जनपद के जिलाधिकारी और जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उन सबके प्रेरणा स्रोत, मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि आप पहले आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन। श्री नवदीप रेणुआ जी, विद्या नॉलेज पार्क और इस संस्था के वाइस चेयरमैन, विद्या नॉलेज पार्क के संस्थापक आदरणीय प्रदीप कुमार जैन जी, हमारे छोटे भाई प्रदीप जैन जी, सौरभ जी, हमारी मेरठ जनपद में ही पढ़ी है, यही शिक्षा ग्रहण की है और आज मेरठ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं ऋतु पूर्णिया जी। इन्हीं का भी पता चला, इनके सहपाठी हैं, दोनों ने एक साथ पहले PPS पास किया था, पांडे जी दूसरे सभी अधिकारी का, विद्या कॉलेज के सभी अध्यापक हैं और जिनके लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है वो सभी होनहार तालिब इल्म, यहाँ की तालबात और जो छात्र छात्रा हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश मेरे ख्याल से बिल्कुल परिपूर्ण है, फिर कुछ रहने की आवश्यकता और कहने की नहीं रह जाती है, उसमें सारी बात समायोजित है। हम लोग, मैं खुद भी और जो छात्र यहाँ पर हैं, हम लोग सामान्य परिवार से हैं, किसी कुलीन परिवार से नहीं। ज़्यादातर जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। जनता में रहने के कारण, पब्लिक के बीच में रहने के कारण अच्छी तरह मालूम है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसी हैं जिनकी फीस का इंतजाम करने में उनके माता पिता को बहुत कठिनाई का सामना उठाना पड़ता है। जब कभी कॉलेज में छात्र पूर्ति के पैसे किसी भी सोर्स से नहीं आ पाते तो बहुत सारे बच्चों के नाम मजबूरन कट जाते। इन परिस्थितियों में जब फीस की इंतजाम ना हो पाए, उनके अभिभावक सही तरीके से बच्चों को पढ़ाने में फीस तक की व्यवस्था न कर पाए, उन परिस्थितियों में लैपटॉप का खरीदना मैं समझता हूँ बहुत ही कठिन काम है। एक बात और भी है, जब एजुकेशन की कमी होती है, हम दक्षिण भारतीयों में हमसे ज़्यादा एजुकेशन आ गई तो वहाँ लैपटॉप के महत्व की हमसे ज़्यादा उनको जानकारी है। हमारे अभी परिवारों में जहाँ लैपटॉप की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, वहाँ पर हमारे यानी हम लोग जो अभिभावक की श्रेणी में आते हैं, मोटरसाइकिल तो खरीद सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए
लैपटॉप का खरीदना जरा मुश्किल सा काम हो रहा, क्योंकि हमें अभी इतनी जानकारी नहीं। इन परिस्थितियों में उन बच्चों का जिनके अभिभावक आज के इस युग में, IT के युग में, जहाँ लैपटॉप की या कंप्यूटर की बहुत सख्त जरूरत है, बगैर इसके तालीम, बगैर इसके शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में वो अभिभावक जो अपने बच्चों को लैपटॉप नहीं खरीद कर दे सकते, या जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, तो उनकी एजुकेशन में, उनकी शिक्षा में एक बहुत बड़ी बाधा है। हम लोग खुद अपने बच्चों को देखते कि क्लास में जाने के लिए जब तक लैपटॉप नहीं होता तो उनको कठिनाई और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा। सरकार की ये सोच के सब बच्चों को लैपटॉप मिल जाए और सब बच्चे एक समान शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो जाएं, क्योंकि इस युग में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी IT के छात्र रहे हैं। शायद उनका विजन वहीं से ये आया हो कि बगैर लैपटॉप और बगैर कंप्यूटर के सब बच्चे एक साथ नहीं चल सकते। इस मायने में अगर देखा जाए कि लैपटॉप की आवश्यकता थी और उन बच्चों को भी लैपटॉप मिल गया जिनके अभिभावक नहीं खरीद सकते, तो इस उत्तर प्रदेश के उत्थान में और उन बच्चों के उत्थान में ये लैपटॉप बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। यूँ तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनके पास लैपटॉप से ज़्यादा की कीमत का मोबाइल होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनकी फीस का इंतजाम करना उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन, उनके अभिभावक को बहुत कठिन होगा। तो जिनके लैपटॉप नहीं खरीद सकते जिनके अभिभावक, उनके लिए तो ये बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 9th क्लास की उनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। जिनके पास नहीं है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा उनके लिए तोहफा है। मेरा सभी बच्चों से ये आग्रह भी है, निवेदन भी है और उनको सुझाव भी है कि इस लैपटॉप का सदुपयोग करें। IT के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इस कंप्यूटर के, मोबाइल के, इसके जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत है। मुझे उम्मीद ये है कि आप इससे जो फायदे हैं उन फायदों को प्राप्त करने की कोशिश करें, और अगर आपने इसका फायदा उठाने की कोशिश करी तो निश्चित रूप से आपका कैरियर बनेगा, और जब आपका कैरियर बनेगा तो उत्तर प्रदेश की भी गिनती पढ़े लिखे युवाओं में होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो मेरे अपने हिसाब से विद्या नॉलेज पार्क या विद्या इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको मैं मेरठ में मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि नंबर 1 के कॉलेजेस में आपका कॉलेज है। उत्तर बच्चे बधाई के पास हैं जिनको यहाँ पर दाखिला मिला है। कम बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर सिफारिश से दाखिला होता है। ज़्यादातर वही बच्चे यहाँ पर दाखिला लेते हैं जो अपनी एबिलिटी और अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से जिनके यहाँ पर दाखिला होते हैं। तो मुझे मालूम है आप सब अच्छे कैरियर के बच्चे हैं, आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो अच्छी है, तभी विद्या नॉलेज पार्क या विद्या कॉलेज में आप यहाँ के स्टूडेंट बने। उसके बाद भी मेरा एक आग्रह और निवेदन है चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से, कि जिन बच्चों को लैपटॉप की या कंप्यूटर की शिक्षा पूरी नहीं है, अब इनके पास सबके लैपटॉप आ गए, अगर एक क्लास उन बच्चों के लिए जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, उनके लिए क्लासेस अगर चला देंगे तो इनको सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने उन साथियों को इस नॉलेज को, इस ज्ञान को बांटें जो उनके पास है। ये ना सोचो कि ज्ञान बांटने से ज्ञान कम होता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। तो सब बच्चों को एक दूसरे की भी मदद करनी चाहिए, और चेयरमैन साहब भी मुझे उम्मीद है कि इन सब बच्चों की उनकी मदद करेंगे जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। एक आखिरी बात आप सबसे कहते हुए इन बच्चों से
देखिए, जिनको लैपटॉप चलाना आता है उन सब से मेरा एक आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये लैपटॉप आप तक पहुंचाया है, और पहुंचाया ही नहीं है, मेरी जानकारी में ये है कि अच्छी कंपनी का पहुंचाया है। ये HP जो है अच्छी कंपनियों में इसका शुमार होता है। जिसने ये अच्छी कंपनी का लैपटॉप आप तक पहुंचाया है उनका शुक्रिया अदा कर दें, और एक मैसेज अगर आज उनको पास कर दें, साहब आपने ये लैपटॉप हमें भेजा है और भिजवाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो इससे एक फायदा हो जाएगा, ये स्कीम आगे को चलती रहेगी, मुख्यमंत्री का उत्साहवर्धन होता रहेगा, और जिन बच्चों को अगले साल आवश्यकता है उन तक भी ये लैपटॉप पहुंच जाएगा। तो जो बच्चे जानते हैं मैसेज कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ करेंगे वो लोग, करेंगे ना। तो मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करते हुए, और जैन साहब आपका सबका शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने, डीएम साहब अभी मुझसे कह रहे थे कि सबसे अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आज आपने किया है ब्लॉक कैंपस में, तो आप इसके लिए अलग से बधाई के पात्र हैं। और अच्छा प्रोग्राम वो ही करते हैं, अच्छा प्रोग्राम और अच्छी बात वो ही करते हैं जो लोग अच्छे होते हैं। तो मैं आपकी अच्छाई के लिए